व्हाट इफ योर पेशेंट इज अ नेम लेवल पेशेंट और अ फैक्ट लेवल पेशेंट, वो अवेयर ही नहीं है अपने डिल्यूजन्स को लेके, या वो इतना सेंसिटिव ही नहीं है, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? उसमें से आप माइंड नहीं, फीलिंग्स नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते ना, सो देयर विल कम अ बैरियर। अब वहां पे क्या होगा, वो पेशेंट आपको लूज कर दोगे आप उसको सिर्फ मेंटल्स पे कर रहे हो, मेंटल्स उसने दिए नहीं, अब आप उसको कुछ भी एक्सवाइजी दूसरी रेमेडी दोगे, वो नहीं ठीक होगा। यू विल लूज दैट पेशेंट, एंड वो पेशेंट अल्टीमेटली आपको तो बाद में चलो, बट सिस्टम को पहले ब्लेम करेगा। विल बी लाइक नहीं, होम्योपैथी में ठीक नहीं हुआ। Hey guys, how are you? Long time no see. I'm so sorry for that. I haven't been active much on the YouTube part of my page. So, we have started a new series known as Cultivation. We'll be talking about the changes that are essential in our system of medicine. We'll be talking about what things we can do to make these changes happen, to bring a change in the current scenario of the system. Okay, so we know that there are many things that have been not being changed for a very long time, since a very long time, due to many reasons. So we'll be inviting in guests to talk about these things. We'll be inviting in practitioners, we'll be inviting in students, we'll be talking about things that are being there dominant for ages. We'll be talking about things that are bringing our system down. We'll be talking about things that are lagging, due to which our system isn't able to grow enough. So it's like 200 years into the system, and still we are now stuck onto something that is known as a plateau. And we'll try to get through this plateau as soon as possible. So, for the first session of cultivation, we had with us Dr. Aditi Arun, an amazing speaker, someone who has been motivating us for a very long time now. She is into the system of medicine, as well as she's a big part of the health community. It's not just that she's working for the homeopathic system of medicine, but she's working for the medical sector. The kind of drives she's putting in, the kind of effort she's putting in, maybe the mental health aspects of the human being, maybe the physical aspects of the human being, maybe the sanitary things, maybe anything that promotes our health, that leads to promotion or declination of our health. She talks about that. Do visit her Instagram page, and she was there for us for a very long time. She helped us to understand what kind of changes that she thinks are essential, where does this plateau starts, and from where and how it has to end. So, primarily, I would like to so much, thank you so much, ma'am, for being with us for that long period. This session happened on 14th of February. So, these sessions will be happening on Sundays. I'll be posting the updates on my Instagram account, and uske kuch din baad we'll be uploading this on the YouTube channel as well. So, it's a lengthy video. Do have a look at it. I'll put in the crux कि क्या क्या possibilities हैं. Do visit my Instagram page, The Frustrated Homeopath, and you'll find the crux also there. Thank you so much, guys, for watching. Do enjoy the video, and do help us know what changes that we can bring in. If you're willing to join us on these live sessions, do message me on my Instagram page, or do message me on my YouTube page, and I'll get in contact with you. Thank you so much, guys. Stay safe. Jai Hind. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो फिक्स माइंडसेट है उसको हम कैसे चेंज करें एंड अपनी प्रैक्टिस में इनकलकेट करें, सो दैट ultimately it will benefit our patients, and then eventually the system will gain its respect and everything. तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन एट अ कॉलेज लेवल। एक वो होते हैं जो बिल्कुल ही फर्स्ट जनरेशन होम्योपैथ्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कॉलेज एक होम्योपैथिक सिस्टम में या होम्योपैथी से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, आइदर दे आर एमबीबीएस, वो नीट वाले ड्रॉप आउट्स होते हैं, या ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन उनको किसी ने बोल दिया होता है कि होम्योपैथी बहुत अच्छी है, कोई रिलेटिव से सुना, या किसी फैमिली में कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर होम्योपैथी से ठीक हुआ, एंड देन दे गेट इंस्पायर कि नहीं हमें ये चीज सीखनी है, बट दे डोंट हैव मेनी, लाइक उनको कोई आउटलुक नहीं होता। उन लोगों के साथ क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता, वो उस कॉलेज में जाएंगे, वो एक टीचर या एक पर्टिकुलर सिस्टम के इन्फ्लुएंस में आते हैं, दे गेट इम्प्रेस, आइदर दे लर्न फ्रॉम इट एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट होता है जो कि सेकंड या थर्ड जनरेशन होम्योपैथ्स होते हैं अपनी फैमिली में, उनके आइदर ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स होम्योपैथ्स होते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग, एंड वो बच्चा बचपन से वो देख रहा है, वो इंस्पायर्ड है, एवरीथिंग है। अब क्या होता है, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, इवेंचुअली वो होता है ना जेनेटिकली कि हम भी वही फॉलो करेंगे। बट आई रियली वॉन्ट टू शाउट आउट एंड स्पीक कि दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को, या जो बडिंग होम्योपैथ्स हैं, कि आप ओपन अप हो न्यू लर्निंग्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हंट कि और कितने स्कूल्स हैं होम्योपैथी के
who are working and how they are working, उनका क्या अप्रोच है, उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, उनके मास्टर्स क्या सिखा रहे हैं, बिकॉज यू नो योर पेशेंट डिसाइड्स द अप्रोच ही वांट्स. जरूरी नहीं है हर पेशेंट Exactly. सिर्फ थेरेपेटिक यू नो मेडिसिन के बेसिस पे आपको रिएक्शंस दे, या हर पेशेंट आपको मेंटल्स दे. सो इफ यू आर फॉलोइंग सम सहगल स्कूल जो कि सिर्फ माइंड पे बेस्ड है, व्हाट इफ योर पेशेंट इज अ नेम लेवल पेशेंट और अ फैक्ट लेवल पेशेंट, वो अवेयर ही नहीं है अपने डिल्यूजन्स को लेके, या वो इतना सेंसिटिव ही नहीं है, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? उसमें से आप माइंड नहीं, फीलिंग्स नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते ना. सो देयर विल कम अ बैरियर. अब वहां पे क्या होगा, वो पेशेंट आपको लूज कर दोगे. आप उसको सिर्फ मेंटल्स पे कर रहे हो, मेंटल्स उसने दिए नहीं, अब आप उसको कुछ भी XYZ दूसरी रेमेडी दोगे, वो नहीं ठीक होगा. यू विल लूज दैट पेशेंट, एंड वो पेशेंट अल्टीमेटली आपको तो बाद में चलो, बट सिस्टम को पहले ब्लेम करेगा. He'll be like नहीं, होम्योपैथी में ठीक नहीं हुआ. So it's very important for coming or budding homeopaths to know कि XYZ, you know, जानकारी सब चीजों के बारे में रखो. ठीक है, एक अपनी इंडिविजुअलाइजेशन भी है, होती है हर होम्योपैथ की, कि मैं कौन से सिस्टम से, कौन से स्कूल से ज्यादा रिजोनेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. उस चीज को ऑब्वियसली मैं उसमें अपने आप को शार्प करूंगी, उसमें अपनी नॉलेज एनहांस करूंगी. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में मैं वो चीज प्रैक्टिस करूंगी. बट देन देर आर हैंडफुल ऑफ केसेस जहां पे वो चीज एज अ बैरियर हो जाएगी, वो केसेस नहीं ठीक होंगे. वहां पे अगर मुझे नॉलेज है कि XYZ, अगर पोलैरिटी एनालिसिस से ये केस ठीक हो सकता है, या ये केस विजिकर अप्रोच से, प्रेडिक्टिव अप्रोच से ठीक हो सकता है, तो व्हाई शुड, लाइक आई वुड एटलीस्ट ट्राई टू दैट केस. उसको मैं थोड़ा एक स्टेप और एक लेवल आगे लेके जा पाऊंगी. देन अगेन यू हैव योर सीनियर्स, यू हैव योर डॉक्टर्स, टीचर्स. अगर किसी भी उसमें आप यू नो अटकते हो, तो आप वो केस शेयर कर सकते हो एंड यू कैन लर्न. बट सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होगी, तभी तो आप किसी चीज को अप्रोच करोगे ना. एंड इवेंचुअली आपका पेशेंट डिसाइड करता है कि वो किस टाइप का ट्रीटमेंट आपसे लेना चाहता है. इट्स नॉट हु डिसाइड, इट्स योर पेशेंट हु डिसाइड्स. अगर पेशेंट नेम और फैक्ट लेवल का है, तो डेफिनेटली आपका थेरेपेटिक अप्रोच विल डू वंडर्स. BTPP अप्रोच विल डू वंडर्स फॉर दैट पेशेंट. बट अगर आपका पेशेंट ऑलरेडी इमोशनल या यू नो डिल्यूजन लेवल पे है, या टू एन एक्सटेंट सेंसेशन वो इजिली दे सकता है अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो व्हाई नॉट यू गो फॉर सेंसेशन मेथड. बट वही अगर आपको एज अ डॉक्टर पता है कि कितनी सारी चीजें हैं, और आप उनके लिए ओपन अप हो कि नहीं, आई एम ओपन टू न्यू लर्निंग्स, आई एम ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, देन ओनली यू नो यू कैन लर्न. सो दिस थिंग आई वांट टू चेंज, कि एक फिक्स अप्रोच लेके मत चलो. नो मैटर व्हाट आपकी, अगर यू नो इफ यू आर सेकंड और थर्ड जनरेशन होम्योपैथ, नो मैटर अगर आपकी फैमिली में एक पर्टिकुलर अप्रोच को लेके ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, व्हाट इफ यू कैन चेंज द आउटलुक ऑफ द पेशेंट्स. जरूरी नहीं है आपको आगे चल के सेम पेशेंट्स मिले. एंड देन अगेन यू नो रीजन्स डिफर. आप कौन से रीजन में प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पे भी आपका पेशेंट्स का सेट चेंज हो जाता है. यू नो इफ यू आर वर्किंग इन अ रूरल या किसी गांव में आपका यू नो पोस्टिंग हो गया है लो इकोनॉमिक, वहां पे आई थिंक हार्डली आपको कोई पेशेंट मिलेगा जो सेंसेशन लेवल के लिए अवेयर होगा. दे आर लाइक नहीं भाई, हमारी तो हड्डी में दर्द हो रहा है, बस हड्डी का इलाज कर दो, या यू नो आई एम हैविंग दिस गैस्ट्रिक इशू, आप XYZ. यहाँ पे आपका थेरेपेटिक अप्रोच बहुत चलेगा. सो अगेन वो रीजन वाइज, पेशेंट वाइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी नॉलेज वाइज यू डिसाइड विच अप्रोच. But then I think you should be open up to approaches. That's how you will, you know, hold back to your system and your roots. Exactly. मतलब मैम, I want to make it a point also कि I've seen people जहाँ पे there's this case that comes in, it has acute gastric condition, and they start asking mental conditions of that patient. मतलब they're asking how are your dreams, how are this, how are that, and the patient is quite resistant to that part. But then they try making that patient come out with those things, and then when the patient moves out of the clinic, he starts blaming homeopathy and homeopaths. So basically, he doesn't blame this particular person, he'll start blaming the complete system, all the homeopaths कि यार वो तो इस तरीके के सवाल पूछते हैं. So मतलब this stage is very very much required कि you should understand what kind of patient you are dealing with, what kind of gentry you are dealing with. And you know जब आपके पास पेशेंट पहली बार आता है ना, आई थिंक पहली बार में हर पेशेंट इतना ओपन अप नहीं होता. ही इज वेरी लाइक दे आर वेरी हेजिटेंट. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में तो डेफिनेटली आप एकदम उसको, या तो यू हैव दैट मच ऑफ कन्विंसिंग पावर, आप इतना पेशेंट को कन्विंस कर सकते हो कि एक्चुअली उसको समझा दो ब्यूटीफाई कि कितना ब्यूटी है होम्योपैथी का, एंड हाउ मेंटल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ डॉक्टर, हाउ योर ड्रीम्स आर रिलेटेड टू योर डिजीज कंडीशन. अगर आप पेशेंट को उस लेवल तक का कन्विंस कर सकते हो, देन यू हैव डन, लाइक आपने पहली बार में सिक्सर मार दिया है. फिर तो पेशेंट स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही आपको बहुत कुछ अपना मेंटल या अपने ड्रीम्स, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बता के चला जाएगा, एंड यू कैन इजीली गो टू दैट केस. बट अगर आपने पेशेंट को कन्विंस नहीं किया, उससे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं लिया है,
एंड समटाइम्स इवन यू आर अनश्योर कि मैं क्या पूछूं, कैसे करूं, इस पर्टिकुलर डिजीज को या केस को कैसे अप्रोच करना है. तो इवेंचुअली आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हो कि उससे बेसिक उसका थेरेपेटिक लोकेशन सेंसेशन थेरेपेटिक वो ले लिया एंड एक रेमेडी जी जी दिया. जी एंड इवेंचुअली फर्दर जो सेकंड या थर्ड सेशन होगा उसमें पेशेंट को और मौका दो कि वो ओपन अप हो जाए. अगर वो अक्यूट स्टेट में है, लाइक अभी उसके एक स्टेट को आप थोड़ा सा सब बेटर कर दो एंड देन उसको बोल दो कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे मेक श्योर कि आप अपने ड्रीम्स के बारे में थोड़ा सोच के आओ, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा ध्यान देके आना. सो नेक्स्ट टाइम यू टेल मी बेटर. बिकॉज बहुत टाइम पे क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं मुझे ड्रीम्स तो याद ही नहीं रहते. तो वो नेक्स्ट फॉलो अप तक आप उसको वो टाइम दे दो कि अब आप अपने ड्रीम्स को या अपने मेंटल या जो भी फीलिंग्स यू आर गेटिंग XYZ उन पे थोड़ा सा ध्यान दो एंड उनको नोट करके आना एंड नेक्स्ट टाइम वील टॉक मोर अबाउट इट. सो हाँ कन्विंसिंग पावर इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको वो मेंटल प्रैक्टिस ही करना है तो आप या तो उस पेशेंट को उस लेवल तक कन्विंस करो कि वो आपको मेंटल लेके जाए. बट स्टिल देयर आर पेशेंट्स हु आर नॉट अवेयर. उनको पता ही नहीं होता कि होम्योपैथी में एक्चुअली क्या हो रहा है. सो वी आर नॉट डूइंग जी organopathy, वी आर नॉट ट्रीटिंग एन ऑर्गन. होम्योपैथी में क्या हो रहा है, these medicines are just stimulating your body's own healing mechanism. आपकी बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ उसको स्टिमुलेट करती है. एंड जब वो एक लेवल अटेन हो जाता है, मेडिसिन हम रोक देते हैं और बॉडी खुद अपनी हीलिंग रिजुविनेट करने शुरू हो जाती है. दैट इज व्हाट होम्योपैथी इज. बट आई थिंक बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता. दे थिंक कि मेडिसिन खा रहे तब तक ठीक है. And then I think we'll debate. So yeah, ask what you want to ask. Exactly, ma'am. But that is the kind of scenario, that is the kind of condition that has been created throughout the world. Being the allopathic sector being such prominency, that is how they have created this dilemma. I would say, कि until unless you are having this medicine for this time duration, आपकी बीमारी वापस आ जाएगी. But that is how their system works. That is not how our system works. That is the difference that people need to understand. Even our doctors need to understand that. Exactly. So पहले हमें पता होना चाहिए ना कि वो मेडिसिन जैसे कितने मतलब ये हमने बहुत कॉमनली सुना है. लोग बोलते हैं ना कि कितने सालों तक हमें मेडिसिन खानी पड़ती है होम्योपैथी में. दे टेक. इट्स नॉट मेडिसिन धीरे एक्ट कर रही है. होम्योपैथिक मेडिसिन कभी धीरे एक्ट नहीं करती. दैट मीन्स आपको जितना ज्यादा टाइम लग रहा है ठीक होने में, दैट मीन्स आपने अपनी बॉडी को उतना खराब करके उस लेवल तक का पहुंचाया है, तब आप एक होम्योपैथ के पास आए हो. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो वंडर्स हो जाएंगे. वी आर जस्ट स्टिमुलेटिंग योर बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, राइट. तो अगर आपकी बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है कि उसको 1.5-2 साल लग रहे हैं ठीक एक अपने लेवल पे आने के लिए, दैट्स योर बॉडी. सो व्हाई नॉट वी आर अवेयर. हम खुद को इतनी हेल्दी स्टेट में क्यों नहीं रखते, या हम इनिशियली एक लेवल पे डॉक्टर को अप्रोच क्यों नहीं करते. मोस्टली होम्योपैथी में एलोपैथी से यहाँ से वहां से सब जगह से थकने के बाद आप आते हो, जब आपको लगता है कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं. तो जब आप ट्राई करो तो फिर मेडिसिन भी फिर आपको ट्राई करके ही दिखाएगी. अगर आप उस कन्विक्शन या उस फेथ के साथ उस सिस्टम में पहले ही स्टेप इन कर जाओगे, तो वो जो ग्रेड 10 पे आपने स्टेप अप किया है, अगर आप ग्रेड 1 पे आ जाओगे तो वो फटाफट अगर हम मेडिसिन देंगे तो विद इन अ मंथ और अ वीक आपको वो रिजल्ट आ जाएगा, वापस से बॉडी ईज वाली स्टेट पे आ जाएगी. बट हम ग्रेड 10 पे जाके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस हम ग्रेड 1 तक या 0 तक जाएंगे, तो ऑब्वियसली it'll take a year or 2 for your body to get accustomed to everything जो भी बॉडी में आपने डिसबैलेंस किया है. But then again, it's very difficult to convince sometimes. It started getting difficult to convince our own doctors, junior doctors that they were getting. It started difficult to convince them how the system is working, what they need to do, what they don't need to do, and then they start developing this different kind of petty that they are selling around, and I guess that is creating much more issues for our system of medicine rather than anyone else. Exactly. So I would like to share one experience. It's not just about like being a homeopath ना, आपको वो healing करना आना चाहिए अपने patient में. At the end, you will administer homeopathic medicines, which is for sure, which is very true. But then you should be open up to other healing systems also. Like, one of my masters, Dr. Jayesh Shah, he's from Bombay. How he inculcates healing is he knows so many meditative therapies, procedures, your past life and future life progressions. He practiced that with the patient. So उससे क्या होता है, पेशेंट अपनी इनर स्टेट, अपनी इनर एक्चुअल स्टेट के लिए जब अवेयर हो जाता है ना, देन यू गेट ब्यूटीफुल सिम्टम्स. देयर यू कैन गेट यू कैन प्रैक्टिस सेंसेशन, देन यू कैन प्रैक्टिस लाइक वो मेंटल्स और फीलिंग्स लेके आप सेंसेशंस लेके आप इजीली कोई भी रेमेडी उसको प्रिस्क्राइब करोगे, वो हीलिंग यूं आती है. इट्स लाइक विद अ ब्लिंक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगर आपको डाइट और रेजिम का थोड़ा बहुत नॉलेज है,
सो आप कलेक्टिवली उसको अपने सिस्टम में, अपनी अप्रोच में आप वो inculcate करते हो, then again you can help your patient live better and treat them better with ease. So मेरा मेन एक जस्ट वो यही है कि फिक्स मत रहो एक पर्टिकुलर अप्रोच को लेके. इट्स लाइक डोंट बी द कुएं का मेढक. कीप बी ओपन टू एवरी अदर सिस्टम. अगर कोई और स्कूल भी है XYZ तो उसको उसका जो भी पॉजिटिव है, सी देयर आर प्रोज एंड कॉन्स इन एवरी सिस्टम. हर होम्योपैथिक स्कूल का अपना एक लिमिटेशंस है, अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं. सो आई एम नॉट सेइंग, बट जिस सिस्टम का एटलीस्ट जो भी गुड पार्ट है वो सारा आप ले लो and see when and how your patients need that learning from you. So it's very important कि अपना aura, अपनी knowledge इसको इतना vast रखो, इतना open up रखो. And जो भी अभी learning year है ना, growth, इसमें जितना मर्जी डॉक्टर से जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो. Like just be as open and stupid as you can कि नहीं हमें ये भी नहीं आता, हमें ये भी नहीं आता, हमें सब सीखना है. Because the dream thought ना कि अब मुझे सब कुछ आता है या मुझे XYZ particular एक approach बहुत अच्छे से आता है, you will be like stuck and you lose. So just always be open to learn. People fail to understand that even Henneman, Dr. M.L. Tyler, Dr. J.T. Kent, you go through their books, by the end of their book they've written in their biographies and biopics कि भाई अगर हमें कुछ समय और मिल जाता तो homeopathic would have been different. I could have learned more. They said I could have learned more. मतलब they didn't even say कि homeopathic could have gained more. They said I could have learned more. But what our current homeopaths they're doing, they're like हाँ ठीक है, I will give something to homeopathy. And from my group, my homeopathy will grow. But they don't understand they are simply failing the pathy by the kind of issues that they are creating with the system. Exactly. See ना, Master Henneman quoted his experiences. उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ सीखा, उन्होंने एक सिस्टम डिस्कवर करके हमारे आगे रख दिया. उसके बाद डॉक्टर केंट आए, जितने भी स्टॉलवर्ट्स उनके बाद आए, अगर वो सिर्फ डॉक्टर हेनेमन को एज इट इज फॉलो कर रहे होते एक फिक्स उससे, तो फिर हम ना स्टुअर्ट की क्लोज की फिलॉसफी पढ़ रहे होते ना हम केंट की. दे हैव देयर ओन, दे वर ऑलवेज ओपन कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या इसको हम और किस नजरिए से इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं. अगर वो चीज भी सिर्फ हेनेमन तक ही वो भी सीमित रह जाते तो आई थिंक इतना जो हमने आज हमें मिल रहा है एडवांसमेंट, केंट का सिस्टम, बॉनिंग-हॉसन का अपना थेरेपेटिक सिस्टम, वो नहीं होता अगर सब वो फिक्स आइडिया से हेनेमन को बस एज अ गॉड प्रे करके या फॉलो करके प्रीच कर रहे होते. नो, इट्स नॉट दैट. दे वर ऑलवेज रेडी टू लर्न, टू मेक सम चेंज, विच एक्चुअली आज की डेट में हमें फिर इतना कुछ मिला है. एंड आज की डेट में भी डॉक्टर लाइक लेट प्रफुल्ल विजयकर सर, उन्होंने एक नया हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को एक नया अप्रोच दिया, ही फॉर ट्रीटिंग केसेस. डॉक्टर संकरन, डॉक्टर पी संकरन सर, डॉक्टर राजन संकरन सर, इन्होंने उस चीज को और आगे बढ़ाया है. अगर वो सारे लोग वहीं रुक जाएंगे तो आई थिंक वो ब्यूटिफिकेशन हमें मिलता ही नहीं. एंड स्टिल व्हाई आर वी गेटिंग फिक्स? जब ये लोग इतनी सीनियर एज में आके नहीं रुक रहे लर्निंग से, तो व्हाई आर वी गेटिंग फिक्स्ड? आई डोंट अंडरस्टैंड. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि स्टिल इस जनरेशन में भी हमें वैसे मास्टर्स और स्टॉलवर्ड्स मिल रहे हैं. अदरवाइज गॉड नोज आगे क्या होने वाला है. Why now, ma'am? In like 200 years of our system, this system has changed the least. Allopathic started from those leech therapies, and now it has come to transfusions. Exactly. And Ayurveda started from basic plant therapy. Now it has come to proper mixtures that they are distributing to people. Yes. But we started at Hahnemannian level or the Kent level, and we are stuck at that. We aren't willing to change. True. So, And whosoever people is like you daring come to up change, we criticize rather than accepting or supporting. We criticize, which is not good. At least आप एक सिस्टम को एक साथ होके चलोगे तो बहुत बेटर कर पाओगे. मतलब frankly speaking, ma'am, you are the first person जिसके मुंह से I had this word, Master Hahnemann, है ना? मतलब it wasn't like you didn't praise him like a god. Even you quoted out there कि भाई until unless we stop praising him like a god and we start changing things, so things cannot come onto a very straight point. मतलब n number of homeopaths I've talked to, but 90.99% people, especially when they come onto social media, they're like, "Bhai, Hahnemann is our Bhagwan, and we'll be praising him like a god, nothing more than that." But they don't like to listen to Dr. Hahnemann. Exactly. See, whatever, obviously, he will always be praised and respected because ये दिया हुआ उन्हीं का है. But उनको सिर्फ blindly या एक फिक्स उससे वो करना इज नॉट राइट ना. उसका भी जो भी बेटर है, दैट्स व्हाट आई सेड ना कि डॉक्टर केंट, डॉक्टर बॉइंग-हॉसन,
स्टुअर्ट क्लोज, रॉबर्ट एच रॉबर्ट्स, अगर इन लोगों ने उस चीज को एग्जैक्टली फॉलो किया होता तो इतना सब कुछ हमें आज पता ही नहीं चलता, वो फिर एक सिस्टम वहीं दब के खत्म हो जाता। हार्डली फिर एक एग्जैक्टली हैंडफुल ऑफ पीपल वुड बी प्रैक्टिसिंग उसी पर्टिकुलर, लाइक सपोज वो सिर्फ जर्मनी में ही प्रैक्टिस होके खत्म हो जाता है एक सिस्टम, बट वो अलग अलग कंट्री से अलग अलग जगह जाके उन्होंने अपना ओपिनियन, अपने रिसर्चेस, अपनी नॉलेज को एनहांस करके अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर किए हैं, आई थिंक उसकी वजह से द सिस्टम हैज गेन lot of respect, and in the upcoming years it's doing wonders. I Backflower hope remedies, you know, there is a section of doctors who are practicing backflower remedies, तो वो भी हमें they पता are. होना चाहिए कि कुछ केसेस में एक्चुअली दे डू वंडर्स। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि नहीं यार बैकफ्लावर रेमेडीज नॉट आर, हनीमन ने तो कहीं कोट नहीं किया था XYZ ऐसी रेमेडीज के बारे में, एंड यू नो वी डोंट, अगर मैं उतनी स्टबर्न और उतनी स्टिफ हो जाऊंगी ना, देन आई लूज माय नॉलेज, आई लूज माई सेल्फ एज अ पर्सन, क्योंकि मैन इज समथिंग जिसको हमेशा लर्निंग में रहना चाहिए, ह्यूमन। So yes, Exactly. And matlab, I feel, ma'am, these are people who quote Hahnemann in those manners. They are the same people who fail to understand that even Hahnemann quoted that the 0.30th potency is the best potency. When the things weren't going fine with homeopathy, he was the one to quote that. But when you come up with that point, they will criticize it. exactly. मतलब it's like they have created Hahnemann as a selective god. कि भाई जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे इनको भगवान का दर्जा दे देंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां इनको उतार के रख देंगे, Exactly, है ना? which is like They are quite hurtful. manipulating Hahnemann. Exactly, they are manipulating Hahnemann's writing into how they want to see it. Exactly. तो बेसिकली मतलब तो व्हाट मैम was trying to say अभी तक was कि आप कुएं के मेढक मत बनिए, आप एक वो पेड़ मत बनिए जो आंधियों में झुकता नहीं, क्योंकि जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। तो Exactly. हमें हर जगह पे झुक के चेंज हो करके अपने आप को और कॉन्स्टेंटली डेवलप करके बनते चलना है। बट अब यहाँ पे हम अपने सेशन के सेकंड पार्ट पे आएंगे और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से डेवलप करें, आपने क्या क्या अप्रोचेस रखी और क्या आप हमें सजेस्ट करते हैं कि हम उन अप्रोचेस को फॉलो करके ये चेंज लेके आए जो आपने अभी हमें बताया कि इसकी जरूरत है सिस्टम में। Yeah. So for this, there are lots and lots of short courses, या you know, due to अभी pandemic के तो online काफी सारे courses चल रहे हैं जिसमें आप enroll कर सकते हो। I think mostly they take after internship, or in internship you can enroll, not before that। तब तक अपना basic you know college का एक protocol follow करके उतना knowledge gain कर लो। Once you are to that level, then go to the next level of learning new things, because this practice is totally different from what you have been taught in your colleges। कॉलेज में एक सब कुछ करिकुलम सब कुछ डिफरेंट है, उसके बाद व्हेन यू स्टेप आउट इन द वर्ल्ड यू रियलाइज कि यार दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क, आई नीड टू ब्रश अप माई सेल्फ, यू नो द वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट एंड नॉट ब्लूज। तो उसके लिए देर आर सो मेनी कोर्सेज ऑनलाइन। आई कैन टेल यू व्हाट आई डिड, यू कैन अदर सॉन्ग अकेडमी के देर आर कोर्सेज गोइंग ऑन, फेलोशिप एंड मास्टर्स कोर्सेज, देन दे हैव दिस कोर्स व्हिच दे इनकलकेट साइकेट्री, right? Then Dr. Jayesh Shah also has his separate course learning where he teaches you how meditation helps with the homeopathy and how you can inculcate that. Then again, I was going through recently, Dr. Vijayakar School के भी काफी सारे certificate courses हैं which are actually certified courses. So once you want to learn to that approach, you can enroll yourself in those courses. And I think they're very short, 6 months, 3 months, या then depends कि 1 year का भी course है या fellowship courses हैं तो थोड़े लंबे चलते हैं। They're affiliated, many courses are affiliated to I think Maharashtra University और कुछ recognized universities से affiliated है, तो आप वहां से वो सब चीजें सीख सकते हो। Then polarity के लिए I have one, like I was fortunate enough to learn from Dr. Devang sir in the other song academy only. So if you want कि अगर आपको therapeutic ज्यादा पसंद है, therapeutic approach, फिर भी you know again I said ना कि वो अपना individualization ढूंढना कि मैं किस एक particular approach में best रहूंगा, बट मैं सारी अप्रोचेस को जानूंगा। सो वंस यू गेट दैट, इफ यू थिंक यू आर गुड एट थेरेपेटिक अप्रोच, तो यस यू कैन ऑल्सो लर्न पोलैरिटी एनालिसिस, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू अ लॉट, यू नो यू कैन क्विकली सॉल्व योर केसेस, सो दैट इज समथिंग वहां से आप लर्न कर सकते हो। देन अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज देयर आर सो मेनी कोर्सेज, अगर आपको अगर साइकेट्री में इंटरेस्ट है अलॉन्ग विद होम्योपैथी, तो देन अपोलो और इन सारे जो मेडिकल स्कूल्स हैं इनके अपने अपने शॉर्ट कोर्सेज चलते हैं। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन डर्मेटोलॉजी अलॉन्ग विद होम्योपैथी, लाइक यू नो शॉर्ट प्रोसीजर्स आप करना चाहते हो, अगेन यू विल गेट दिस 6 months 1 year you know diploma courses from Apollo और I think Max, some they have their courses, तो आप वहां पे एनरोल कर सकते हो। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप किसी डॉक्टर को या किसी मास्टर को यू नो इंटर्नशिप अगर आप वहां पे ले रहे हो तो आप उनका सिस्टम वहां से जान सकते हो,
because then there are so many doctors who are not up on social media platforms, but then एक particular उस area में that system is very prominent. तो if you are, अगर आपके रीजन में आपको ऐसा लगता है कि कोई एक डॉक्टर है जो एक पर्टिकुलर अप्रोच फॉलो कर रहा है and he is getting good results and you are convinced कि ये अप्रोच सही है, तो उसका पॉजिटिव उठा लो उनके पास इंटर्नशिप लेके. बाकी I'll do one thing, I'll make a list of courses कि कौन कौन से कोर्सेज कहाँ कहाँ चल रहे हैं. You can put it up out there for the audience, right? And I think that would be of really much I think help for the audience. recently Dr. Shikha did one session previously, na? I think she had quoted few, but then again we'll make one. Fine, ma'am. That would be very helpful for the audience. अच्छा, आप लोगों ने, अगर हमारी ऑडियंस ने एक चीज ध्यान दिया हो, मैम ने बहुत सारे जो हमारे सिस्टम में जिसको सो कॉल्ड एलोपैथिक टर्म्स बोलते हैं उसका यूजेज किया. हमें साइकेट्री का पता चला कि साइकेट्री कोर्सेज होते हैं. मतलब these are the terms when you call it out to our homeopaths, they say ये हमारा नहीं है. ये जो है ये a homeopath एलोपैथिक can be a very good, in fact, the best psychiatric counselor. I don't know why people don't believe, because जिन लोगों का वो mental और sensation part बहुत strong है ना, they can do wonders in psychiatry. They can treat n number of cases, and I've myself witnessed cases being treated. So yes, I can bang on to that कि हाँ, psychiatry अगर आप साथ में सीख रहे हो तो yes, you can do wonders with your practice. Exactly. And then it's like, it's not bad calling out names for yourself कि भाई I am good with dermatology या I am good with psychiatry. That is what specialization means. And the day we'll understand that we are, as ma'am said, कि we should be good at one thing, but we should inculcate everything with us. Exactly. We should be inculcating everything within us, but we should be good at something. So that should be there. There's no harm in calling yourself a particular expert in psychiatry, a particular expert in derma, or like gastrointestinal conditions. So that's good. अच्छा मैम, someone asked कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने तुरंत ही आपको बोला. Someone asked कि कैलकाटा में how are people practicing and why is their practice giving much more results? मतलब I don't know where. NIH वाले. Yeah, so they NIH वाले basic they Calcutta have is masters in, I think, repertory. They are much more into the repertory. मुझे ज्यादा उनका नॉलेज नहीं है, बट ब्रीफ जितना भी है वो यही है कि दे आर मास्टर्स इन रिपर्टरी. आई थिंक डॉक्टर सरकार इज फ्रॉम कैलकाटा ना, तो उनका जो मैंने एक दो सेमिनार लिया है, सो दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स बिकॉज वहाँ के पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स दे आर गेटिंग सिमिलम टू ईच अदर. सो वहाँ के डॉक्टर्स में एक्चुअली वो डेडिकेशन है उनको ठीक करने का, एंड वहाँ के पेशेंट्स आर ऑल्सो ओपन अप टू द डॉक्टर्स. बाकी सारी साइड पे जाओ ना, वी आर जस्ट डूइंग अ फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ अ थिंग. वी आर नॉट, मतलब कैलकाटा साइड में आप देखोगे ना, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड open to learning. Again, they are very open to learning. They literally drill themselves day in day out to learn something as a doctor. So that's why वहाँ पे results अच्छे हैं. Plus then there is this energy channelize हो जाती है एक particular area में ना, you manifest, बार बार बोल के NIH ने एक level set कर रखा है, and then that collective energy works and obviously people are getting results there. बाकी सारी जगह पे क्या है, वो collective energy ना बहुत कम है. Like अगर दो चार लोग एक्चुअली उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने लगते हैं तो देयर आर सो मेनी पीपल क्रिटिसाइजिंग इट. एंड ऐसा नहीं है, whosoever was like जिसका भी वो क्वेश्चन था, आई वांट टू से in Delhi also there are so many doctors who are getting amazing results. In Maharashtra, I myself seen n number of masters doing wonders. Dr. Farooq Master, Dr. Sankaran, Dr. Jayasha sir, Dr. Dinesh Chauhan sir, everyone, these are my masters and I'm blessed. And it's not that कि सिर्फ कैलकाटा में, it's just हर जगह वो results हैं, but we are not putting up out on the platforms. So if you personally go and see their work, they are doing much more better, and they are doing wonders. So ऐसा नहीं है, हर region में बहुत amazing homeopaths और practitioners हैं, and they're doing good results. They're giving. भाई जैसे आपने स्टार्टिंग बोला ना कि there are many people who aren't there on Instagram या who aren't there on social media, but they are practicing and they are giving tremendous results. So we aren't able to get to know about them that easily. They have a set of patients who are getting treated by them, and just it's just mouth-to-mouth publicity. They aren't putting up holders वगैरह somewhere, so you get to know about it. But as ma'am said, we are practicing everywhere. Each and every homeopath is giving amazing results. It depends who you are taking medicine from. Acha ma'am, one more thing. As we talked about the change in system, and as you talked about not to be that कुएं का मेढक, there are people who fail to understand. मतलब I have come across physicians like that who fail to understand that management
as you said, na, diet and nutrition, then derma वगैरह. So they fail to understand that management is an essential part of homeopathy. And management, I mean everything by management. Like putting in casts, if you have a fracture, putting in like a plaster there. Yeah, if you have a bleeder open, so cauterizing it. So they fail to understand that management is a part of homeopathy. So please, if you can shed some light on it. Can you repeat your question? बीच में ना काफी break हो गया. Ji, I'm saying that there are many people who fail to understand that management is a part of homeopathy. Like if someone has a fracture, so putting a cast onto it. If someone has a bleeder open, so putting cautery on it. है ना? Yeah, if someone has a boil, so using something that cleans that surface या a dressing, जिसको हम cleaning and dressing वाला aspect बोलते हैं ना. People don't think, physicians don't understand that that is also a part of our system of medicine. By being doctors, we need to do all this. Okay. So if you can shed some light on that. So I quoted this because this was the mistake I made myself when I passed out from the college. That's why, and when I stepped out, I learned. I realized that, that's not how it's going to be work. मतलब कुछ time पहले तक I was like, we homeopaths don't do all these things. But then one of my colleague made me understand, and my mother also mentioned this quite a lot of times, that, before being a homeopath, you are a doctor first, right? And if you are traveling out somewhere, or you're sitting, for that matter, you're in your clinic and आसपास कोई accident हो गया, so एक basic emergency management, being a health worker, being a doctor, आपको आना चाहिए. There is no shame in that कि आप कोई injection लगाना, मतलब ठीक है मुझे नहीं आता है, but I was learning. तो वो चीज मैंने तब realize की कि you can't say no to a patient. अगर कोई आपके पास walk in कर रहा है कि I don't have a doctor nearby, can you put up an injection to me? I was like, no, we cannot. Then what an image we portray. So वो एक basic emergency management आना बहुत जरूरी है, and there is no harm in that. एक drip कैसे चढ़ानी है, what if, या cast कैसे करना है, अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप एटलीस्ट वो एक फर्स्ट एड तो रख ही सकते हो ना. अगर कोई ओपन वुंड आ गया है, ठीक है, एक स्टिच सीख लेने में कुछ भी वो नहीं है, आप अपनी पैथी से डाइवर्ट नहीं हो रहे. उल्टा हाँ, इफ यू हैव दैट नॉलेज तो आप टिंचर्स को यूज कर सकते हो हीलिंग में. लाइक जो फर्स्ट मैं देती हूँ अपने पेशेंट्स को, अगर कोई ओपन वुंड का आता है, वी डोंट अप्लाई बीटाडीन, वी गो फॉर कैलेंडुला. आई नो थोड़ा ज्यादा ही जलता है वो, बट you can actually again आप अपने सिस्टम को बहुत ब्यूटीफुली मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो. I feel क्योंकि वो जलता है तो पेशेंट्स उससे अट्रैक्ट भी ज्यादा होते हैं. एलोपैथिक कड़वी दवा होती है, बट वो एलोपैथ्स के पास जाना पसंद करते हैं. यहाँ जलता है तो एटलीस्ट दैट पोर्ट्रेज अ इमेज कि हमारे पास भी कुछ ऐसा चीज है जलने वाला भी. मतलब आई वुड पॉइंट आउट वन थिंग, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट ऑन टू दैट. अभी देयर वाज दिस पर्सन जिनको मैंने दवा दी, ही इज एलोपैथिक फिजिशियन, और उनको मैंने टिंचर्स दिए. रात को ही कॉल्ड मी अप आस्किंग, यार मेरा मुंह बहुत खराब हो गया और ये क्या दे दिया तुमने. नेक्स्ट डे से आई टोल्ड हिम कि भाई 1-2 दिन दवा खाइए, फिर उसके बाद आपको अंतर लगेगा. नेक्स्ट डे से बोले यार दवा तो है, वो मीठी गोली अच्छी नहीं लगती थी, एंड ये पता चल रहा है. तो आई फील फॉर पीपल लाइक दिस जिनको सिस्टम पे भरोसा नहीं है, हु फील ये खाली एक मीठी गोली है, कभी उनको डायरेक्ट डाइल्यूशन या टिंचर देके तो देखिए. टू इंटरप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर if they are patients only, like they are just viewers, they are not practitioners, मीठी गोली, the pills are just the vehicles to dispense the medicine. I don't know क्यों लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, या वो फैल चुकी है इतनी ज्यादा समाज में कि अब उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. The first thing comes up is like गोली मीठी गोली is just a vehicle to dispense the medicine, which is quite actually वो कड़वी है. अगर डायरेक्टली आपके टंग पे डाली जाएगी तो वो कड़वी है. That is a preparation. So मीठी गोली is not something. Recently, I was like, I gave a medicine to a patient, and then वो घर पे जाने के बाद ना कॉल करके बोलते हैं कि इसमें दवाई कम लग रही है, मतलब उनको मीठी ज्यादा लग रही थी. बोलिए मतलब मैं उसमें 50 बूंद और डाल के आपको दे देती तो you could have felt better कि हाँ उसमें दवाई है. So it's just that people are like, लोगों ने होम्योपैथी को इतना लाइटली ले रखा है, एंड बीइंग अ डॉक्टर हमने भी वो ना रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करवाई. वी गो लाइक कि नहीं ठीक है ले जाओ. अगर हम वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने लग जाए ना, then actually people will understand the beauty and the essence of the system कि नहीं, actually some things work. So entirely again it's our call. मतलब हम कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम को. हम अपनी बेइज्जती चाहे जितनी मर्जी करा लें, बट एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. If you're not good as a doctor, you are failing to treat a case, no issues. But आप वो डिग्निटी के साथ उस केस को या तो अपने किसी सीनियर को डिस्कस करो या रेफर कर दो, इससे पहले कि वो खराब हो और पेशेंट आपसे अपसेट हो.
सो द मेन एम यही होना चाहिए कि पेशेंट ठीक कैसे हो रहा है. यू कैन डिस्कस योर केस विद योर कलीग्स दैट यू नो दिस केस आई एम गेटिंग स्टक हियर, व्हाट एल्स आई कैन डू. सबसे बड़ी बात आई हैव सीन नॉर्थ साइड में ना पीपल आर नॉट ओपन अप टू शेयरिंग. South I have seen like Maharashtra belt में they are so open to learning, but I feel disappointed. I don't know. I was not like मैं सोच रही थी कि मैं नहीं बोलूंगी, but like निकल गया मुंह से. नहीं But मैम, North में I have see, seen this I tell कि you लोगों को something. है I कि tell you मेरे something. पास जो This is नॉलेज a है वो मेरे पास platform. ही रह जाए. I am not open to teach young buds, which is very wrong. I think तो नहीं होगा ऐसे. They feel that this system या जो उनका particular sector है, it should just flow in their bloodline, and whenever that bloodline dies out, that particular system dies out. Which is very, है ना? I think, which is very painful and which is very Wrong. disheartened It's wrong. to. That's very wrong. Exactly, that's very wrong. So yeah, And मतलब frankly speaking, ma'am, my the page name is the Frustrated Homeopath. We all have our frustrations there, so no issues. Take it out. मतलब this is a platform. yeah, exactly. I think I'm on the right platform today. है ना, मतलब it's like this, we are just there talking about things, nothing more than that. है ना? तो वो कोई दिक्कत नहीं. आपको जो चीज लगती है आप यहाँ खुल के बोलिए. यहाँ जो आपकी ऑडियंस होगी वो हर तरीके से आपकी बात सुनेगी. I guess they'll understand, and if they don't, so no issues. That is not the kind of audience we're looking for also. Exactly. So ये तब चीज मुझे left out feel हुआ when मैं महाराष्ट्र से वापस दिल्ली आई and I was like there are very few doctors who are like welcoming. But I think that's not how. Then that system will get to a pause. तो वो ना करके जितना आपके पास नॉलेज है, आप अगर किसी और से सीखे हो तो आप आगे सिखाओ या उनको बच्चों को पढ़ाओ. So that वो कलेक्टिव एनर्जी जैसे जैसे स्प्रेड होगी ना, द सिस्टम विल राइज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर की कंट्रीज में जो भी कुछ कंट्रीज में आई एग्री कि होम्योपैथी इज बैंड ड्यू टू XYZ रीजंस व्हिच आर लाइक आउट ऑफ द डिबेट. बट जिन कंट्रीज में प्रैक्टिस हो रही है ना, वहां पे पीपल आर सो मच इनटू लर्निंग. दे आर ऑलवेज कलेक्टिवली दे आर डूइंग सेशंस एंड सेमिनार्स. तो वहां पे वो चीज फ्लेयर अप होती है. अगर आप एकदम लाइक स्टबन हो जाओगे कि नहीं मुझे मेरा नॉलेज कंसील करके रखना है, दैट्स हाउ इट विल नॉट वर्क. Okay, ma'am, someone asked what basic advice would you give to a second and third year student who has just been introduced to the petty? Okay. So the students who have been introduced, I would like to say पहले तो अपना फाइनल ईयर तक जितना भी करिकुलम का कोर्स है उसी पे ध्यान दो. एटलीस्ट एलन की नोट में जितनी मेडिसिन है उसमें हैंड वो करो. ऑर्गेनन को जितना थरली पढ़ सकते हो, बिकॉज ऑर्गेनन इज समथिंग विच विल ऑलवेज कीप यू इन अ ट्रैक. अगर आप कभी ऑफ ट्रैक हो जाओगे ना होम्योपैथी में, तो वापस ऑर्गन में जो मास्टर हिनमन ने कोट किया है, आप उस चीज से वापस पुल बैक रहोगे और आप सिस्टम से रूटेड रहोगे. सो जितनी बार भी ऑर्गन कितनी भी बोरिंग लगती है, बट प्लीज थरली उसको पढ़ो, because that will keep you intact to the roots of homeopathy. But हाँ, after in your internship, if you get an opportunity कि अपने कॉलेज से बाहर जाके आप किसी और डॉक्टर को पर्सनली ज्वाइन करके कुछ सीख सकते हो, तो then you should approach. Then most probably after your internship, you get chance. So that's it. सेकेंड और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर तक इतना भटकने की जरूरत नहीं है. और इतना बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते ही ना, दे स्टार्ट साइड बाय साइड अपना प्रैक्टिस करना, which is not right. Because that is why I was smiling on to that. I've seen people who started practicing first year से. हाँ, तो Ma'am, let it first year से their practice. Dangerous. It's poisonous. आधा अधूरा ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, बट आधा ज्ञान ना होने से भी ज्यादा डेंजरस है. बिकॉज मैंने अभी फाइनल ईयर तक रिपोर्टरी से आई हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड. मैं सिर्फ मटीरिया मेडिका के बेसिस पे 4-5 सिम्टम्स पढ़ के अगर मैं देने लग गया हूँ, दैट विल क्रिएट अ मेस. एंड अगेन उसमें से भी अगर बाय चांस बाय लक अगर आपके 2-3 तुक्के से भिड़ गया कोई केस, तो फिर तो आपने आगे जाकर रिपोर्टरी को उठाना भी नहीं है. यू विल बी लाइक नहीं मटीरिया के एसके दुबे से मेरे केसेस ट्रीट होते हैं. दैट्स नॉट द केस. आप अगेन फिर उनको सप्रेशन पे ही लेके जा रहे हो. मटीरिया में एसके दुबे से केसेस ठीक होते हैं. दैट्स आई थिंक मोस्टली यही पढ़ते हैं ना बच्चे. आई डोंट थिंक सो हार्डली कोई बोरेकिया के एंड उठाता भी होगा. I have seen people जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको शायद लोटस का नाम भी नहीं पता है. मतलब पीपल, और अगर लोटस का नाम पता है तो दे नो कि मोती क्या है. उनको सिर्फ नाम भी पता होगा तो ज्यादा नहीं पता होगा, अंदर पता ही नहीं होगा कौन से पन्ने पे क्या चल रहा है. वी हार्डली डोंट, बिकॉज वो एक एलन की नोट और शायद हार्डली बहुत होगा तो बोरिक उठा लेते हैं क्लिनिकल उसके लिए. बट विच इज वेरी रॉन्ग. सो पहले सिर्फ अपने करिकुलम पे ध्यान दो. जितना सिस्टम ने जनरेट किया है, जितना भी कॉलेज का वो है प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करो. उसके बाद यू आर ओपन अप टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम सो मेनी डॉक्टर्स. फिर आप जिस मर्जी स्कूल को आप देयर आर शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज, फिर आप डेफिनेटली आप उसमें जाइए
एंड बाय दैट टाइम यू विल रियलाइज अपना खुद का पोटेंशियल एज अ डॉक्टर, एज अ होम्योपैथ. तब तक आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मैं XYZ एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ होम्योपैथी में मुझे इंटरेस्ट है, मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ, इसको तो मैं बहुत अच्छे से सीखूंगा. एंड साइड बाय साइड मैं दूसरी सिस्टम्स के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक ब्रीफ नॉलेज तो रखूं, सो दैट मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं कि मेरे पास जब एक पेशेंट आया है, अगर वो पर्टिकुलर, जैसे सपोज आई एम प्रैक्टिसिंग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्कूल, मेरे पास वो पेशेंट आया, एटलीस्ट मुझे आइडिया लग जाएगा कि वो पेशेंट अगर इस स्कूल का नहीं है, इसमें फिट नहीं हो रहा है, इस अप्रोच से ठीक नहीं होगा. इफ आई हैव नॉलेज ऑफ अदर स्कूल्स, एटलीस्ट मैं उस अप्रोच से भी तो प्रैक्टिस कर सकती हूँ. इट्स लाइक यू आर पेशेंट इज इन द सेंटर ऑफ अ रूम जिसमें 4-5 खिड़कियां हैं. मैं अभी सिर्फ एक ही खिड़की से देख रही हूँ, बट हो सकता है पेशेंट उस तरफ मुंह करके खड़ा है, मेरी इस खिड़की से मुझे उसका मुंह ही नहीं दिख रहा. तो एटलीस्ट आई एम ओपन अप एंड आई एम रेडी टू गो टू दैट विंडो. अब मैं दूसरी साइड से देखूंगी तो मुझे पेशेंट इधर से दिखेगा, तो मुझे समझ आएगा नहीं नहीं नहीं, इधर वाली साइड पे ये मिसिंग था, सामने वाली साइड से पेशेंट ऐसा है. मैं लेफ्ट साइड से देखूंगी, मैं राइट साइड से देखूंगी. तो आई एम ओपन अप ना, तो वो एक होलिस्टिक पिक्चर, एक कलेक्टिव पिक्चर पेशेंट का मुझे मिलेगा. एंड देन आई कैन हिट टू द सेंटर ऑफ द पेशेंट एंड वो इंडिविजुअलाइजेशन. और जब वो वाइटल फोर्स अटैक हो जाएगी ना उस मेडिसिन से, वहां पे हीलिंग विल बी लाइक, इट्स लाइक मक्खन, Exactly. स्मूथ, हीलिंग विल बी स्मूथ.